نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ بنٹوال میں ناڈو کاڑو نامی علاقے کے بی جے پی صدر نے خودکشی کر لی۔ پتور چلتی کار پر ہاتھی کا سونڈ سے حملہ، 6 سوار زخمی۔ کنداپور میں بے قابو پیٹرول ٹینکر ایک گھر کے آنگن میں لڑک گئی۔ گجرات کے چھاپی بناس کانٹھا میں فائن ڈیکور فائن ہوم کے نئے شو روم کا افتتاح، گجرات جمعیت علماء کے نائب صدر مولانا عبدالقدوس صاحب کی شرکت۔ بھوت کا ڈر بھگانے کے لیے پوری رات شمشان گھاٹ میں سویا ٹی ڈی پی ممبر اسمبلی۔ بی جے پی لیڈر چودھری لال سنگھ کی کشمیری صحافیوں کو دھمکی، اپنی حد میں رہنے کے لیے کہا۔ دہلی فوجی افسر کی اہلیہ کے قتل کے الزام میں میرٹھ سے فوج کا ایک میجر گرفتار۔ آندھرا پردیش کے ضلع کرنول میں بھیانک سڑک حادثہ، 9 افراد کی موت۔ اجودھیا پہنچے وسیم رضوی، رام مندر کی تعمیر کے لیے 10,000 روپے کا کیا عطیہ۔ چین مذہبی پابندیوں اور بھارت معاشرتی اعتبار سے تعصب والے ممالک میں پہلے نمبر پر۔ ترکی صدارتی اور پارلیمانی انتخابات مکمل، رجب طیب اردوگان نے بھی حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ جرمنی عمارت میں دھماکہ، 25 افراد زخمی۔ فلسطین پرامن واپسی مارچ پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ، 206 افراد زخمی۔ روس کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی اور درعا پر بمباری۔ اسپین کوسٹ گارڈ نے سمندر میں پھنسے 768 تارکین وطن کو موت کے منہ سے بچا لیا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انصار عزیز ندوی آپ کا میزبان آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر کرناٹک کے بنٹوال سے ہے۔ پونجال کٹے کے قریب ناگو کاڑو نامی علاقے کے مقیم پرشانت ولد دیگونت بھوجا پجاری نے اپنے گھر کے چھت سے پھانسی لے کر خودکشی کر لی ہے۔ اطلاعات کے مطابق پرشانت وینور میں کپڑے کی دکان میں ملازمت کرتا تھا۔ کل صبح 5 بجے کے قریب گھر کے چھت سے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ پرشانت ناکو کاڑو نامی علاقے کا بی جے پی علاقائی صدر بھی تھا۔ پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے۔ بی جے پی صدر کے خودکشی کی وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں۔ اب خبر پتور سے، یہاں اوپننگڑی سبرامنیا اہم شاہراہ پر چل رہی ایک کار پر اچانک ایک جنگلی ہاتھی کے حملے کی وجہ سے 6 افراد کے زخمی ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے، جبکہ کار کو پوری طرح نقصان پہنچا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دھرمستھلا سے سبرامنیا کی جانب جا رہی سیاحوں کی اومنی کار کے ڈرائیور نے ہاتھی کو دیکھ کر اچانک کار روک لیا، مگر اس دوران ہاتھی واپس لوٹ کر اپنی سونڈ سے زوردار کار کے شیشے پر دے مارا، جس کی وجہ سے کار کا شیشہ و دیگر چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی اور پھر مسافر زخمی ہوئے۔ ہاتھی مزید سونڈ سے اومنی کار کو نقصان پہنچاتی، اس سے قبل ہی پیچھے سے آ رہی ایک بس کے ہارن کی آواز سے ہاتھی واپس اپنا راستہ لے لیا، جس کی وجہ سے مسافر چھوٹے موٹے زخمیوں کے ساتھ بچ نکلے۔ اب خبر کنداپور سے، پیٹرول لے جانے والی ایک ٹینکر اچانک ڈرائیور کے ہاتھوں بے قابو ہو کر راستے کے کنارے اتر جانے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اطلاع کے مطابق کل رات دیر گئے بالاڈی کے قریب ککنجے نامی علاقے میں حادثہ پیش آیا ہے۔ یہ ٹینکر پیٹرول بھر کر منگلور سے بಳ್ಳاری کی جانب جا رہی تھی کہ اچانک ککنجے کے قریب لاری ڈرائیور کے ہاتھوں بے قابو ہو کر یہاں موجود مہیش نامی شخص کے گھر کے آنگن میں لڑک گئی اور پھر گھر کی دیوار سے جا ٹکرائے۔ ڈرائیور زخمی ہوا ہے، جبکہ کسی بھی طرح کی آگ لگنے کی خبر موصول نہیں ہوئی۔ اطلاع پا کر فوری طور پر فائر بریگیڈ کے عملے کو بلا لیا گیا ہے۔ ناظرین اب ایک اشتہاری خبر گجرات سے۔ گجرات کے چھاپی بناس کانٹھا میں فائن ڈیکور اور فائن ہوم کے نام سے آج صبح ایک بہترین عالیشان شو روم کا افتتاح مولانا عبدالقدوس صاحب نائب صدر جمعیت علماء گجرات اور رکن عاملہ جمعیت علماء ہند کے ہاتھوں عمل میں آیا ہے۔ اس افتتاحی دعائے تقریب میں مقامی علماء کرام اور ذمہ داران نے شرکت کرتے ہوئے تجارت میں برکت کی دعائیں کی ہیں اور مختصر دینی نشست کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں حلال تجارت اور سرمایہ کاری پر گفت و شنید ہوئی۔ ملحوظ رہے کہ اس سے قبل بروز سنیچر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند نے بھی یہاں تشریف لا کر دعا کی تھی۔ یاد رہے کہ فائن ڈیکور نامی شو روم میں آپ کو فینسی لائٹ سے وابستہ تمام تر بہترین چیزیں فروخت کے لیے تیار ہیں، جس میں پائپ سے لے کر دیگر تمام لوازمات مہیا کی جائیں گی۔ اسی طرح فائن ہوم میں اسٹیل ہارڈ ویئر، لوہا ہارڈ ویئر، سینیٹری، پلائی ووڈ وغیرہ ملے گی۔ اس افتتاحی نشست کے اہم مہمانان میں
मौलाना अब्दुर्रहमान अतीकुर रहमान साहब कुरैशी, फारूक भाई, अबुल हसन, ऑर्गेनाइजर जमीयत उलमा हिंद हाजिर रहे। ये शोरूम मौलाना याहया की निगरानी में चलेगा। मजीद तफसीलात के लिए इन नंबरात पर रब्ता किया जा सकता है। नंबरात है 7284833060, 9925233060। अब खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में एक शमशान घाट की तामीर में हो रही ताखीर से परेशान टीडीपी लीडर ने जुमा को एक अनोखा काम किया है। टीडीपी मेंबर असेंबली ने जुमा की रात हिंदू समान वाटिका शमशान घाट में गुजारी ताकि शमशान घाट की तामीर में मसरूफ मजदूरों को इस बात की यकीन दहानी कराई जा सके कि भूत जैसी कोई चीज नहीं है। पिलाकोले से टीडीपी मेंबर असेंबली नमिलाराम नायडू ने सोने से पहले रात का खाना भी शमशान घाट में ही खाया। सुबह उठकर वो अपने घर गए और दिन में तामीराती काम का जायजा लेने के लिए फिर वापस लौटे। मीडिया से बातचीत करते हुए नायडू ने कहा कि मैं आने वाले 2-3 दिनों तक इसी जगह पर सोने वाला हूं ताकि मजदूरों के दिल से भूत का खौफ दूर हो जाए, क्योंकि वो शमशान घाट में आने से डरते हैं। दरअसल इस शमशान घाट की जदीदकारी के लिए 1 साल पहले 3 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन मजदूरों के दिल में भूत का डर होने की वजह से तामीराती काम की रफ्तार काफी सुस्त है। शमशान घाट में तन्हा सोने से पहले नायडू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अफसरान और ठेकेदारों ने तवील अरसे से लटके इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अब खबर कश्मीर से। बीजेपी लीडर चौधरी लाल सिंह ने कश्मीरी सहाफियों को अपने हद में रहने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि कठुआ आबरूरेजी और सीनियर सहाफी शुजात बुखारी के कत्ल की रिपोर्टिंग करते वक्त सहाफियों को अपने हद का ख्याल होना चाहिए। सिंह ने जुमा को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मैं कश्मीरी सहाफियों से कहना चाहूंगा कि सहाफत करते वक्त अपने हद में रहें। सिंह ने कहा, तू इसलिए अपने हद तय करे ताकि भाईचारा बना रहे। ख्याल रहे कि राइजिंग कश्मीर के एडिटर शुजात बुखारी का 3 बाइक सवारों ने 14 जून को ऑफिस के बाहर गोली मारकर कत्ल कर दिया था। गौरतलब है कि यह पहली मर्तबा नहीं है जब सिंह ने तनाजे को हवा दी है। पीडीपी बीजेपी हुकूमत में वजीर रह चुके लाल सिंह अप्रैल में कठुआ आबरूरेजी और कत्ल के मुलजिमों की हिमायत में हुई रैली में भी शामिल हुए थे, जिसके बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। इधर कश्मीरी सहाफियों ने लाल सिंह के खिलाफ गवर्नर से मुलाकात करने का फैसला किया है। सहाफियों का मुतालबा है कि बीजेपी लीडर की खुलेआम धमकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सहाफियों ने कहा कि इससे पहले लाल सिंह सहाफियों पर इल्जाम लगा चुके हैं कि उनकी वजह से ही उन्हें वजीर के ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। लाल सिंह के इस बयान की सियासी लीडरों ने सख्त तनकीद की है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, डियर जर्नलिस्ट, कश्मीर में आपके साथियों को अभी भी बीजेपी के एक मेंबर असेंबली ने धमकी दी है। ऐसा लगता है कि शुजाअत की हलाकत अब गुंडों के लिए एक ऐसा हथियार है जिसको सहाफियों को डराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब खबर दिल्ली से। मुल्क की राजधानी दिल्ली में इंतहाई महफूज समझा जाने वाला इलाका कैंट में एक फौजी अफसर की अहलिया शैलजा देवदी के कत्ल के मामले में पुलिस ने हिंदुस्तानी फौज के एक मेजर को मेरठ से गिरफ्तार किया है। निखिल हांडा नाम की इस फौजी अफसर को पुलिस दिल्ली ला रही है। हांडा इससे पहले दीमापुर में तैनात थे और बताया जा रहा है कि मकतूल के मोबाइल से आखिरी फोन हांडा को ही गया हुआ था। ख्याल रहे कि कैंट इलाके में हफ्ते को एक खातून की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। बताया जा रहा है कि खातून हफ्ते की सुबह 10 बजे फिजियोथेरापी सेशन के लिए आर्मी अस्पताल गई थी। ताहम कुछ वक्त बाद जब ड्राइवर खातून को वापस ले जाने के लिए अस्पताल आया तो उसे मालूम हुआ कि वो वहां फिजियोथेरापी के लिए आई ही नहीं थी। शाम 4 बजे तक जब खातून घर नहीं लौटी तो उसके शोहर ने पुलिस में अपनी अहलिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि हफ्ते को उन्हें खबर मिली थी कि खातून की सड़क हादसे में मौत हो गई है। वहां पहुंचकर जब उन्होंने लाश का मुआयना किया तो मालूम हुआ कि उसका गला काटकर कत्ल किया गया है। इसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे। पुलिस की जांच में पता चला कि कत्ल के बाद लाश को गाड़ी से भी रौंदा गया था। अब खबर हैदराबाद से। आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल में पेश आए सड़क हादसे में 9 अफराद की मौत और दीगर 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा इतवार की सुबह के अव्वलीन सातों में कर्नूल नंदियाल हाईवे के करीब सोम्याजुपल्ली इलाके के करीब उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस ने ऑटो को टक्कर दी। इस ऑटो में 13 अफराद सवार थे। 7 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 2 की अस्पताल मुंतकिली के दौरान मौत हुई। पुलिस के मुताबिक 3 ऑटो रिक्शा रॉन्ग साइड से आ रहे थे, जिसमें 2 ऑटोस महफूज तौर पर जाने में कामयाब रहे, जबकि एक ऑटो को बस ने टक्कर दे दी। पीयूकोंडा और कालापारी मुआवजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद नेचुरोपैथी इलाज के लिए नंदियाल टावर के करीब महानंदी गांव को जाने के लिए ऑटो में सवार हुए थे।
मरने वालों में ज्यादातर ज़ईफ और बीमार अफराद थे। अगर ये बस तीनों ऑटो से टकरा जाती तो मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता था। हादसे की इत्तला के साथ ही मरने वालों के रिश्तेदार कसीर तादाद में वहां जमा हो गए। इस हादसे में ऑटो को शदीद नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अब खबर अयोध्या से। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वसीम रिजवी ने राम मंदिर की तामीर के लिए राम जन्मभूमि कार्यशाला को 10,000 रुपये दिया है। अयोध्या पहुंचे वसीम रिजवी ने कहा कि एक मुकदमा जीतने से बेहतर है कि करोड़ों राम भक्तों के दिलों को जीता जाए। उन्होंने कहा कि सेकुलर मुसलमान होने की वजह से वो आज राम जन्मभूमि कार्यशाला आए हैं। वसीम रिजवी ने कहा कि हमने अदालत को तजवीज़ पेश की है कि लखनऊ में मस्जिद अमन तामीर की जाए। अपने हैसियत के मुताबिक 10,000 रुपये आज हम मंदिर की तामीर के लिए दे रहे हैं। जिस दिन तामीर का काम शुरू होगा उस दिन बहुत से सेकुलर मुसलमान सामने आए, जिसके हैसियत से जो हो सकता है तामीर में मदद करेगा। ख्याल रहे कि वसीम रिजवी अपने बयानात की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहता है। हाल ही में उन्हें वाई जुमरे की सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया गया, जिस पर भी सियासी हलकों में काफी बहस हुई। बता दें कि वाई जुमरे की सिक्योरिटी में 10 जवान रहते हैं। अब खबर बीजिंग से। दुनिया भर में मजहबी तासुब और पाबंदियों में इजाफा हुआ है। बैनुल अक़वामी सर्वे के मुताबिक 28% मुल्कों में मजहबी पाबंदियों की शरह इंतहाई ज्यादा है। ईसाई और मुसलमान सबसे ज्यादा मजहबी तासुब का शिकार हैं। चीन हुकूमती सतह पर मजहबी पाबंदियों और भारत माशरती एतबार से तासुब वाले ममालिक में सरे फहरिस्त है। बैनुल अक़वामी इदारे पीयू रिसर्च सेंटर के सर्वे में दुनिया की 198 मुल्कों में 2016 के दौरान मजहबी पाबंदियों का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 55 ममालिक में शरह इंतहाई ज्यादा रही। मुख्तलिफ मज़ाहिब के खिलाफ मुतअस्सिबाना कार्रवाइयों में भी इजाफा हुआ है। 144 मुल्कों में ईसाई और 142 मुल्कों में मुसलमान उसकी जद में रहे। रिपोर्ट के मुताबिक चीन मजहबी पाबंदियों जबकि भारत माशरती एतबार से सबसे ज्यादा मजहबी तासुब वाला मुल्क है। ज्यादा मजहबी पाबंदियों वाले दीगर ममालिक में मिस्र, रूस, इंडोनेशिया और तुर्की भी शामिल हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सदारती और 27वीं टर्म आम इंतखाबात के लिए उस्कूदार के साफियत जेपी मिडिल स्कूल में वोट डाला। वोट डालने के बाद अखबारी नुमाइंदों के साथ बातचीत करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्की भर से मौसूल मालूमात के मुताबिक इंतखाबात में शिरकत अच्छी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि तुर्की सदारती निज़ाम के साथ हम असर तहजीबों की सतह से ऊपर उठने के लिए अपने मेयार में संजीदा सतह पर बुलंदी ला रहा है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नताइज के एक हिस्से को मैं इस्तांबुल में और एक हिस्से को अंकारा में देखूंगा। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मौसूला मालूमात के मुताबिक इस वक्त तक तुर्की भर में कोई संजीदा मसला देखने में नहीं आया है। वाज़ेह रहे कि आज तुर्की में पार्लिमानी इंतखाबात थे जो अपने इख्तिताम को पहुंचे हैं। अब खबर जर्मनी से। जर्मनी के शहर वोपरटॉल में एक इमारत में धमाके के नतीजे में 25 अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाके में जख्मी होने वालों में से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक इमारत के मलबे तले दबे अफराद हो सकते हैं। इमारत में नई तोड़फोड़ और इंहदाम के सद्देबाब के लिए हिफाजती इक़दामात इख्तियार कर लिए गए। धमाके की वजह के बारे में ताहाल कोई मालूमात मौजूद नहीं है। अब खबर रमला से। फिलिस्तीनियों के पुरअमन वापसी मार्च पर सेहूनी पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग में 206 अफराद जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक सेहूनी फौज ने फिलिस्तीनियों के पुरअमन वापसी मार्च पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहरी जख्मी हो गए। ख्याल रहे कि गुज़श्ता 13 हफ्ते से इसराइली फौज की गजा के शहरियों पर फायरिंग के नतीजे में फौत होने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद 140 तक पहुंच गई है। अब खबर रूस से। रूस ने हफ्ते की शब रात गए जनूबी शाम में अपोजिशन ग्रुपों के जेर कंट्रोल इलाकों पर फिजाई हमले किए हैं। शाम में इंसानी हुकूक के सबसे बड़े निगरान ग्रुप अल मरसद अस्सूरी के मुताबिक तकरीबन 1 बरस कबल इस इलाके में फायरबंदी पर आमादगी के बाद रूस की जानिब से खिलाफ वर्जी का पहला वाकया है। अल मरसद का कहना है कि रूसी तैयारों ने दरआ के मशरक में देही इलाके में कई कस्बों पर 25 से ज्यादा फिजाई हमले किए। अलबत्ता अल मरसद जानी नुकसान के हवाले से मालूमात हासिल न कर सका। याद रहे कि जनूबी शाम में दरआ, कनैतरा और सुवेदा सूबे के बाद हिस्से उन सेफ जोन्स में से एक जोन का जुज़ हैं जो आस्ताना बातचीत के नतीजे में सामने आए थे। रूस, अमेरिका और उर्दू ने गुज़श्ता बरस जुलाई में मज़कूरा इलाकों में फायरबंदी पर इत्तेफाक राय किया था।
अल-मरसद ने जुमेरात के रोज एक ऐलान में बताया था कि गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान दरआ सूबे में शामी हुकूमत की बमबारी के सबब 12,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शामी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले हालिया हमलों के सबब इलाके में मौजूद 7.5 लाख से ज्यादा अफराद की जानों को खतरा है। दरआ के 70% इलाके पर शामी अपोजिशन के मुख्तलिफ ग्रुपों का कंट्रोल है, जबकि दाइश तंजीम ने अपना वाजिबी सा वजूद बरकरार रखा हुआ है। अब खबर स्पेन से। स्पेन के कोस्ट गार्ड्स ने समंदर में फंसे 768 गैर कानूनी तारिकीन वतन को बचा लिया है। कोस्ट गार्ड्स ने तारिकीन वतन को बचाने की फुटेज जारी की है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक तारिकीन वतन हवा भरी 25 कश्तियों पर सवार थे, जिन्हें समंदर की लहरों ने मंजिल से दूर कर दिया था। कोस्ट गार्ड्स ने आबनाए जबराल्टर, बहरेल बुरान और केजी आइलैंड के करीब से बचाया गया। तारिक वतन की अक्सरियत का ताल्लुक अफ्रीका के ममालिक से है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ न भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।